Hello student, today we are going to learn next problem. Uh, our video means video problem number 15 and textbook problem number 10, page number 120. See, in that problem we learn same as it is additional information using tabular form, and as well as we calculate depreciation of asset using opening and closing balance. Means here we calculate depreciation on asset using opening and closing balances. Same as it is adjustment, here we learn whatever we learn in the last time, same as it is. Okay, there is no any changes, but here only they given tabular form. See, page number 120, problem number 10, unsolved problem number 10. Okay, means practical problem number 10. From the following receipt and payment account, KBP Engineering College, Nashik, for the year ended 31st March 2019, and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on same date. Means our accounting year is what? 1st April 2018 to 31st March 2019. 2018-19 is our current accounting year. Understood everybody? Then they give one receipt and payment account. See, in a receipt and payment account, receipt side they get all balances. Everybody know where we read only exclude cash at bank and cash in hand bank. All balances we recorded in all we recorded credited to income and expenditure account. Credited to income and expenditure account. Okay. First one they give an interest rupees 55,000. It's credited to income and expenditure account. Subscription same as this is credited to income and expenditure account inner column, because subscription have an adjustment. Next one, life membership fees same as it is, it's credited to income and expenditure account. Donation credited to income and expenditure account, again adjustment on donation. Tuition fees 12 lakh 30,000 credited to income and expenditure account. Term fees 2 lakh 800 credited to income expenditure account. Sundry receipt credited to income expenditure account 8,000. To admission fees, under bracket they give one revenue, means what? Here we consider revenue receipt, and whatever revenue receipt is our, or where we recorded is recorded, it's credited to income and expenditure account, means we recorded income side. Always remember, if under bracket they given general revenue, that time all those income we recorded income side. Where we recorded income side, means it's credited to income and expenditure account. See, the next one, salary to teaching staff. Payment side, first balance salary to teaching staff, it's debited to income and expenditure account. Electricity charges debited to income and expenditure account. Books, here books is additional balance, means the purchase balance 61,000, means asset side. Furniture purchase balance asset side 51,000. Stationery debited to income expenditure account. Fixed deposit is recorded asset side 8,50,000, and balance carried down cash in hand and cash at bank recorded asset side. Okay, the payment side, first one balance means salary to teaching staff, expenditure, electricity charges expenditure, books assets, furniture assets, stationery expenditure, fixed deposit assets, balance carried down cash in hand and cash at bank assets. Okay, so receipt side इसमें से सिर्फ एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड डोनेशन के ऊपर. सी, नेक्स्ट वन देखते हैं
Additional information means adjustment related to this problem is first one, they given books, opening balance of books 6 lakh, closing balance of books 6 lakh also. Okay, means most of the time student consider here there is no any depreciation on books because opening balance 6 lakh and as well as closing balance is 6 lakh, but ऐसे नहीं होता है यहाँ पे because in that problem they given also they given additional books value also. यहाँ पे उन्होंने क्या दी है, एडिशनल बुक, मतलब बुक परचेस किए और उन्होंने उसकी अमाउंट भी दी है, दैट वन इज अ 61,000. सो 6 lakhs plus additional books value 61,000. So total amount is what, 6,61,000. And here the closing balance is what, 6 lakh. So using that one we find out the difference between this and find out depreciation amount. Okay, understood everybody? Means formula is opening balance plus additional purchases minus closing balance, and whatever difference we got that is our depreciation amount. Understood everybody? एसेट के बारे में कंपलसरी ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो. एसेट के बारे में अगर आपको कहीं पे दिया नहीं है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है प्रॉब्लम में, तो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो फॉर्मूला लिखो opening balance of assets plus additional value of assets minus closing balance. So whatever difference you got is your depreciation amount. फिर से बताती फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशनल परचेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस. सो ये डिफरेंस होगा आपका डेप्रिसिएशन. तो देखते हैं आगे एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करके क्या है. ये है फर्स्ट सेकंड, फर्नीचर 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 3,19,000 एंड क्लोजिंग इज व्हाट 3 lakh. So don't consider here 19,000 is a depreciation amount. Same formula apply here, opening balance plus additional minus closing, and then we find out depreciation amount. Okay, सबके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ओपन करके ही देखो प्रॉब्लम. मैंने कल के प्रॉब्लम में भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि पूरा वीडियो एंड तक देखो एंड देन अटेंड एनी टेस्ट है तो टेस्ट अटेंड बाद में करो. ओके, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेस्ट पहले ही अटेंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम देखा ही नहीं है, मतलब जो कंसेप्ट है उनको पता समझ में आए या पता नहीं, बट they just only solve. That's why most of the student got marks in that test 0, 2, 5 like that. Okay, so we focus on first video and then solve test. Next one balance they given building 10 lakh. Okay, then इसके ऊपर एडजस्टमेंट देखते हैं. एडजस्टमेंट नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क दिया, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड. सिर्फ बिल्डिंग आता है तो एसेट है, एंड बिल्डिंग फंड है इज अ लायबिलिटी. ओके, बिकॉज फंड है मीन्स व्हाट इज अ पेबल अमाउंट, दैट्स व्हाई वी रिकॉर्डेड बैलेंस शीट एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. फिक्स डिपॉजिट एसेट साइड 9,10,000 प्लस पेमेंट साइड में और बैलेंस दिया था फिक्स डिपॉजिट का 8,50,000. ये दोनों ऐड होके फिक्स डिपॉजिट के बैलेंस हम एसेट साइड दिखाएंगे. कैपिटल फंड 9,47,400 सेम एज इट इज द गिवन हियर, एंड क्लोजिंग बैलेंस वी फाइंड आउट यूजिंग एडिशन और डिडक्शन ऑफ सरप्लस एंड डिफिशिएंट. ओके, सी फर्स्ट वन एडजस्टमेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड and balance to be donation 50% donation for building fund and balance to be treated as revenue income. means what, जो भी डोनेशन की 50% अमाउंट है दैट कैन बी ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड एंड रिमेनिंग बैलेंस वी कंसिडर रेवेन्यू इनकम. मीन्स उसी साइड लिखेंगे, एक इनकम साइड ही लिखेंगे. ओके, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, 50% अमाउंट लेस फ्रॉम डोनेशन. डोनेशन की अमाउंट है 7 लाख, तो 7 लाख के 50% क्या होता है 3,50,000. ओके,
So we less this one amount from donation. And second effect we recorded, add under building fund, add under building fund, transfer to building fund. Okay, second effect building fund कहाँ पे है, balance sheet liability side. The next one, outstanding subscription. Everybody know that one adjustment subscription related is a outstanding income. That's why first effect add under subscription, and second effect balance sheet asset side. Whatever outstanding subscription is our income outstanding, that's why we recorded. This means what is the receivable amount, that's why we recorded balance sheet asset side. Understood? Life membership fees are to be capitalized fully. Life membership fees amount are to be capitalized. So full amount is what, 25,000. We less that whole amount from life membership fees. And second effect, transfer to capital fund, add under capital fund. ओके देखते हैं फिर सॉल्यूशन. सबके पास टेक्स्ट बुक है, अभी सॉल्यूशन को कंपलसरी स्क्रीनशॉट लेके रखनी है. सॉल्यूशन देखो, सैलरी 11,70,000, 11,70,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000, स्टेशनरी 21,800, सब्सक्रिप्शन 28,300, लाइफ मेंबरशिप इंटरेस्ट 55,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 इनर कॉलम, डोनेशन 7 lakh इनर कॉलम, ट्यूशन फीस 12,30,000, टर्म फीस 2,08,000, सन्ड्री रिसीट एस डॉट रिसीट मतलब क्या है यहाँ पे, सन्ड्री रिसीट 8,000, बाय एडमिशन फीस 60,000. यहाँ पे सन्ड्री रिसीट मतलब क्या है, सॉरी एस डॉट रिसीट मतलब क्या है, सन्ड्री रिसीट. ओके देखते हैं. बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, बुक्स, फर्नीचर, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हमने रिकॉर्ड किया एंड एज वेल एज बिल्डिंग फंड रिकॉर्ड किया. देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, बुक्स के ऊपर है. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, बुक्स के ऊपर है. बुक्स क्या है, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. बुक्स का क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. नहीं, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या, एज पर आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. सो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट होगा उसका लेस फ्रॉम डोनेशन, फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी 7 लाख के 50% अमाउंट है 3,500, तो करेंगे 3,500 सॉरी 3,50,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट क्या है होगी उसकी रिकॉर्ड होगी वहाँ पे. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. क्या हो गया, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, सेकेंड इफेक्ट होगा उसका बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड, बिल्डर ऐड 3,50,000. सो आंसर आ रहा है 10 लाख प्लस 3,50,000 13,50,000. ओके हो गया, समझ में आ सबको. यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी दी है, फर्स्ट इफेक्ट मैंने लिखा है, सेकेंड इफेक्ट भी लिखा है. यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है, देखो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट है तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर दिया है. उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा यहाँ पे, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा हमें, तो सेकेंड इफेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे. अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंफर्म. सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा ऐड अंडर सब्सक्रिप्शन ₹5,300 एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. देखो यहाँ पे मैंने 2 सेकेंड नंबर लिखा है. और उसका सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड,
बैलेंस शीट एसेट साइड, ये देखो ये यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके ठीक है, सेकेंड इफेक्ट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप फुल्ली अमाउंट वी कैपिटलाइज, होल अमाउंट कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 माइनस कैपिटलाइजेशन 25,000, so remaining amount is what? Nil. And second effect, add under capital fund, 25,000. अंडरस्टूड। थर्ड एडजस्टमेंट। अभी रिमेनिंग क्या है? बुक्स रिलेटेड। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया था 6 लाख, एडिशनल बैलेंस दिया था मतलब परचेस वाला बैलेंस लिया था 61,000, तो हो गया टोटल 6,61,000 एंड आवर क्लोजिंग बैलेंस इज व्हाट? 6 लाख। So 6,61,000 minus 6 lakh, so answer is what? 61,000। तो 61,000 is our depreciation। तो इसका ये फर्स्ट इफेक्ट होगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सेम फॉर बिल्डिंग फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है 3,19,000, एडिशनल बैलेंस है 51,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। तो 3,70,000 माइनस 3 लाख, सो डिफरेंस इज व्हाट? 70,000। मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स प्लस एडिशनल और परचेज बैलेंस माइनस क्लोजिंग, सो वी गॉट डेप्रिसिएशन अमाउंट। इनका सेकेंड इफेक्ट जाएगा income and expenditure account debit side, depreciation on books 61,000 and furniture 70,000। ओके अंडरस्टूड एवरीबडी। सबसे इजी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ भी आज डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के लिए हमने क्या किया है? फिक्स डिपॉजिट दोनों भी बैलेंसेस ऐड हो गए, ओपनिंग एज वेल एज वो जो पेमेंट साइड में दिया था वो वो क्या हो गया? ऐड हो गया। पेमेंट साइड में दिया था दैट्स वाई क्या होगा? ऐड ही होगा। ओके अगर उन्होंने यहाँ वहाँ पे दिया जाता तो वहाँ पे इंटरेस्ट है या कुछ है उसके ऊपर निकाल सकते थे, बट यहाँ पे अभी उन्होंने कहाँ पे बैलेंस दिया है? पेमेंट में दिया है, मीन्स वी आप वन मोर अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट, सो ऐड होगा 17,60,000। ओके इतना ही प्रॉब्लम था, ये सबसे इजी वाला प्रॉब्लम था। सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में याद रखो, इतना ही वहाँ पे डिफ़िकल्ट था, बाकी सब इजी था। ओके फिर टैली करते हैं। टैली करने के बाद हमें डिफरेंस दिखता है, आवर क्रेडिट साइड इज मोर, आवर क्रेडिट साइड इज मोर, सो क्रेडिट बैलेंस इज व्हाट? 19,37,400 एंड आवर डेबिट बैलेंस इज 13,77,850। सी आपको यहाँ पे दिखेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेबिट साइड की टोटल क्या है क्रेडिट साइड की, तो डेबिट साइड की टोटल है 13,77,850, तो वो डिडक्ट होगी 19,37,400 में से। सो हमें सरप्लस की अमाउंट मिली, सरप्लस हो गया यहाँ पे। सरप्लस मीन्स व्हाट? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 5,59,550। दिस इज अवर सरप्लस दैट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगा वो बैलेंस। एड सरप्लस 5,59,550। ओके देन वी टैली अवर बैलेंस शीट। अवर टैली अमाउंट 28,81,950। ओके बस इतना ही प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करने हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया है। ओके ओके हो गया। ये सबसे इजी वाला प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन if they given opening and closing balance of assets and as well as purchase balance. Thank you.